Hello everyone, myself Pragati Gurwal. Hope you all are staying and safe at home. Let's start today's class. As you all know that we were learning chapter money and banking, and I have marked here also that we have covered in our previous two classes. Money we have covered. Now we are going to start next subtopic, that is banking. It is a separate chapter in different books, so we have just make it a different slide for that. And before starting it, let me clear you the subtopics that it is going to cover. First one, in the banking system you are going to know about the commercial bank and its function. What are the basic functions of commercial bank and what is a commercial bank, right? And how many banks are there, which type of banks are there. Then after that you will learn about the money creation and credit creation. Here you will learn that is with the help of the initial deposit or some amount of deposit, how we can generate it more and how we can create the credit in the market, right? And who create the market, who create the money or credit in the market, that we will also come to know about it later on. There's a different topic, central bank. All of you know in India it is Reserve Bank of India, right? उसके बारे में पढ़ेंगे एंड इट्स फंक्शन, आरबीआई के फंक्शंस के बारे में भी पढ़ेंगे. एंड further we will, in the last we will learn about the control of money supply by the सेंट्रल बैंक. हमारे इंडिया की सेंट्रल बैंक आरबीआई है. तो मार्केट में जो मनी सप्लाई है वो कभी कम हो जाती है, कभी ज़्यादा हो जाती है. मनी सप्लाई कैसे कैलकुलेट करते हैं, दैट यू हैव लर्न इन द प्रीवियस क्लास, राइट? पार्ट 2 में आपने पढ़ा था. here you will learn that how the RBI can control it. But let me clear you one thing more, that in the today's class, okay, we will cover only these two topics: commercial banking and its functions and money creation. And this is a important chapter. Mostly it a question, basically a 4-mark question comes from this chapter, either from the money creation or from the central bank and its functions. It is mostly commonly seen that in the exams any one of the topic appears. Most probably it appears 90% it comes in the exam with the 4 marks question. Okay, so let's proceed. Start with the commercial bank. What do you mean by the commercial bank? As you all know, initial about it, that whenever there are basic two functions of the commercial banks. That first one is, I have mentioned here in the definition also, that the accepting deposit and granting loans. Chale, before starting it, let me read it out. An institution which performs the functions of accepting deposits and granting loans, making investments and with the aim of earning profit. हम सब जानते हैं, बेसिकली आप जानते हो कमर्शियल बैंक्स जैसे आपका पीएनबी हो गया, पंजाब नेशनल बैंक, आपका इलाहाबाद बैंक, कैनरा बैंक, आपका एसबीआई हो गया, आपका ये बैंक ऑफ बड़ौदा मान लीजिए, इलाहाबाद बैंक मान लीजिए, आपका आईसीआईसी बैंक मान लीजिए. ये सब क्या हैं? आपके कमर्शियल बैंक्स हैं. इनका बेसिक पर्पस, बेसिक काम क्या है? आप जाते हो, आपने कुछ सेविंग्स करी, बैंक में डिपॉजिट किया. It means they accept your deposits. If suppose a business person also went to a commercial bank and there he deposited his amount that is related to his business, also the banks received the deposit, they accept the deposit, right? And what they have the practice of accepting the deposit, after accepting the deposit they lend the same deposit to the borrowers who are the needy person, like स्पेशली द बिजनेस इंस्टीट्यूशंस, फर्म्स जिसको हम बोलते हैं, उनको एज अ लोन ग्रांट कर देते हैं वो, राइट? उनको दे देते हैं. मेकिंग इन्वेस्टमेंट, ये बैंक्स भी आगे कहीं ना कहीं आगे इन्वेस्ट करते हैं उसी पैसे को. और ये सब क्यों किया जा रहा है? जस्ट टू अर्न द प्रॉफिट. ऑब्वियस बात है, कमर्शियल बैंक्स काम ही इसीलिए करते हैं जिससे कि उनको कुछ ना कुछ काम प्रॉफिट मिले. अब आप बोलोगे कि मैम पीएनबी तो नेशनलाइज बैंक है, पब्लिक बैंक है, तो उसको प्रॉफिट क्यों? तो सरकारी एक जनरल टर्म में बोल देता ना, गवर्नमेंट बैंक है. जैसे आईसीआईसीआई तो आपकी प्राइवेट बैंक हो गई और आपका पीएनबी आपका गवर्नमेंट बैंक हो गई. तो मैम गवर्नमेंट बैंक क्यों करेगी? वो तो सोशल वेलफेयर के लिए होती है.
लेकिन नहीं, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि पीएनबी भले ही गवर्नमेंट बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक इसलिए कही जाती है क्योंकि मोर देन 51% शेयर होल्डिंग्स आर इन द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, राइट, एंड वेयर इज इन द आईसीआईसी बैंक मोर देन द 51% शेयर होल्डिंग्स इज विद द प्राइवेट सेक्टर, इसलिए वो प्राइवेट फर्म हो गई, और जो आपकी पीएनबी है वो आपकी पब्लिक सेक्टर फर्म हो गई। लेकिन दोनों ही कमर्शियल बैंक्स हैं, वो भी प्रॉफिट के लिए ही काम करते हैं। अभी आप देखते होगे न्यूज़ चैनल में भी दिखाते हैं, आपने कुछ रिसेंट न्यूज़ सुनी होगी, इस बार जब बजट आया था तो फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया था कि वेरी सून 4 to 10 बैंक्स जो कि लॉस में जा रही हैं उनको मर्ज करना पड़ेगा कुछ सेपरेट बैंक्स में। लॉस में जा रही हैं, लॉस का मतलब ऑब्वियसली तो प्रॉफिट कमाना चाहिए था लेकिन नहीं कमा पा रहे, राइट। सोशल वेलफेयर का काम वो अपनी जगह कर रहे हैं, लेकिन उनकी भी प्रायोरिटी सबसे पहले प्रॉफिट ही होती है। और बैंक्स की लैंग्वेज में हम इस प्रॉफिट को जो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड ग्रांटिंग लोन्स के बीच में जो इंटरेस्ट के बदले इनको पैसा मिलता है, जो प्रॉफिट के तौर पे इन्हें पैसा मिलता है, दैट इज़ नोन एज द स्प्रेड। हम आप बुक में अगर रीड करोगे तो आपको मिल जाएगी इसीलिए, राइट। तो कमर्शियल बैंक एक ऐसे इंस्टीट्यूशन है जिनका बेसिक वर्क है आपसे पैसे डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, ग्रांट्स लोन देना और कहीं और इन्वेस्ट करना, और जस्ट फॉर प्रॉफिट, राइट। मैंने एक और नेक्स्ट टॉपिक इसमें मेंशन किया हुआ है आपका टाइप्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स। सी दिस इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस एंड दिस इज़ नॉट गिवन इन योर बुक, जस्ट फॉर द एक्स्ट्रा नॉलेज आई हैव मेंशनड इट हियर। बेसिकली कमर्शियल बैंक्स, क्योंकि कुछ बच्चे पूछते हैं कि मैम कौन सी बैंक है कमर्शियल, नेशनलाइज्ड बैंक और कमर्शियल बैंक में क्या अंतर है फिर, राइट। तो थोड़ा बहुत अंतर है, इसलिए मैं आपको बता देती हूँ। कमर्शियल बैंक्स बेसिकली टू टाइप्स ही होती हैं, शेड्यूल्ड बैंक्स एंड नॉन शेड्यूल्ड बैंक, राइट। शेड्यूल जो उनके पास लिस्टेड हैं, जैसे आप जाओगे आगे बुक्स में भी गो थ्रू करोगे तो आपको एक चीज़ जानने को मिलेगा कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत आपके सभी बैंक्स काम करते हैं और उनको साथ के साथ आरबीआई गाइडलाइंस देता रहता है टाइम टू टाइम। तो आरबीआई का अपना अलग एक्ट है, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, जो हम कल की स्लाइड में भी डिस्कस करेंगे। आपके पास इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारी सारी बैंक्स काम करती हैं। तो शेड्यूल्ड बैंक उन्हीं के अंदर अपना वर्क करते हैं। शेड्यूल्ड बैंक बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, प्राइवेट बैंक, पब्लिक बैंक्स और फॉरेन बैंक्स, राइट। जितने भी प्राइवेट बैंक्स हैं जिनकी शेयर होल्डिंग अभी मैंने आपको बताया 51% से ज़्यादा हो, पब्लिक बैंक जिसकी 51% से ज़्यादा शेयर होल्डिंग गवर्नमेंट के पास हो तो वो पब्लिक बैंक्स, फॉरेन बैंक्स ऑब्वियसली आते हैं जो हमारे इंडिया यानी कि आपकी डोमेस्टिक कंट्री को छोड़ के अदर कंट्रीज़ के जो बैंक्स हैं वो फॉरेन बैंक्स हो जाएंगी। नॉन शेड्यूल बैंक्स में वो आ जाती हैं जिनको पूरी तरीके से ये बोल सकते हैं कि शेड्यूल नहीं किया गया। शेड्यूल नहीं किया गया कि मतलब कि सिंपली जहाँ पर इनको अपना काम करना है, कमर्शियल बैंक्स हैं, लेकिन ये वो काम नहीं करेंगी जो पब्लिक बैंक्स और प्राइवेट बैंक कर सकती हैं। जैसे आपकी कुछ इसमें आएंगी, आप जाओगे तो कोऑपरेटिव बैंक्स हो गए आपके, कुछ नबार्ड आप पढ़ोगे आपके पास आएगा, और कुछ फार्मिंग ऐसे होते हैं जिनका काम होता है इजी टर्म्स पर लोन। इनका हम कह सकते हैं कि ये ज़्यादातर फोकस सोशल वेलफेयर करते हैं, राइट। चलिए, दिस इज़ नन ऑफ द पार्ट ऑफ योर सिलेबस बट जस्ट फॉर द एक्स्ट्रा नॉलेज आई हैव मेंशनड इट हियर, ओके। चलिए लेट्स प्रोसीड। हाँ, नेशनलाइज्ड बैंक का मैंने बताया था, तो नेशनलाइज्ड बैंक ध्यान रखिएगा वो सारी की सारी आपकी पब्लिक बैंक्स में आ जाएंगी, राइट। चलिए नेक्स्ट, functions. It is important part, it is one of the important topic. What are the functions of commercial bank? ध्यान रखिएगा बेसिक और प्राइमरी फंक्शन इनके दो हैं जो मैंने अभी आपको बताया, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड एडवांसिंग द लोन्स। अब एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स अलग अलग तरीके अकाउंट में हम डिपॉजिट करते हैं। जैसे अगर आप एज ए स्टूडेंट हो, आपने सेविंग किया तो आप सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट करोगे, मम्मा ने कुछ सेव किया, मम्मा ऑल्सो विल डिपॉजिट इन द सेविंग अकाउंट। एंड सपोज करिए इफ़ यू हैव अ करेंट अकाउंट रिलेटेड टू योर फर्म और बिजनेस, फादर्स बिजनेस, तो वो किस में जाएगा, करेंट अकाउंट, राइट। डिमांड डिपॉजिट्स भी जिसको हम बोल सकते हैं। और मान लीजिए किसी ने एफडी करा रखा है, टाइम डिपॉजिट, हमने याद है मनी वाले चैप्टर में ही पढ़ा था, तो आपके फिक्स डिपॉजिट्स में पैसा जमा करना है, यानी इन ऑल बैंक के पास जा रहा है पैसा, हम डिपॉजिट कर रहे हैं, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। एडवांसिंग लोन में क्या जाएगा कि जहाँ पर जो आपने पैसा डिपॉजिट किया है वो उसी को फर्दर आगे किसी को लोन के तौर पर दे रहे हैं, चाहे वो शॉर्ट टर्म के लिए हो, लॉन्ग टर्म के लिए हो। जैसे कई बार तो कुछ एसेट्स के बदले, जैसे हमने कोई
सिक्योरिटी के तौर पे अपने पेपर्स रख दिए और उसके बदले हमने लोन ले लिया। आप देखते हो कि फर्म्स में होता है, फर्म्स में अपने स्टॉक के बदले उनको मिल जाता है, लोन मिल रहा है। या कई बार क्या होता है, अपने प्रॉपर्टी के पेपर्स मॉर्टगेज करके कोलेटरल सिक्योरिटी के तौर पे रखने के बाद उनको लोन मिल जाता है। बहुत से लोग देखते हैं, आप देखते हो एजुकेशन लोन, होम लोन, ये सब इसी में आ जाता है, राइट। तो बेसिक काम आपका यही जाता है। सेकेंडरी फंक्शंस कुछ और भी काम हैं जो आपके बैंक्स के किए जाते हैं, जैसे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी आपने सुना होगा बैंक में। ये खासतौर होती है आपके करंट अकाउंट के लिए, कि एक हमने एक कस्टमर को एक अकाउंट में एक लिमिट कर दी कि अगर इस लिमिट से ज़्यादा अगर आपका होता है तो गवर्नमेंट आपको एज अ लोन दे देगी, राइट। उनका इजीली और ख़ासतौर से उन्हीं लोगों को अलाउ करती है जिनको वो रिलायबल समझते हैं, भरोसेमंद समझते हैं कि चलो हाँ कभी अगर जैसे सपोज करिए आपके अकाउंट में 10 लाख का बैलेंस है, राइट, और आपने किसी को चेक दे दिया 12 लाख का, तो आपका 2 लाख से ओवरड्राफ्ट हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, आप दे दो, आपका चेक पास हो जाएगा। लेकिन तब जब आपने पहले से बैंक को ये इंस्ट्रक्शन दे रखे हों कि कभी मेरे बैलेंस से ज़्यादा अगर निकल जाता है अमाउंट तो वो एक्सेप्ट कर लें, उसको मना नहीं करें। तो बैंक्स भी कर लेते हैं सिर्फ इसी बेसिस पे कि उन्हें पता है ये कस्टमर रिलायबल है, हम इसको दे सकते हैं इजीली। और ये खासतौर से बिजनेस में करंट अकाउंट में ही होता है और किसी में नहीं होता, राइट। डिस्काउंटिंग बिल्स, जैसे आप लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा होगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज करके, तो मेच्योरिटी टाइम पीरियड से पहले एम्प्लॉय जाके उसको विड्रॉ करा सकता है, उसको डिस्काउंट करा सकता है। तो ये वही कुछ एक्स्ट्रा काम होते हैं। एजेंसी फंक्शन, जैसे मान लीजिए आपको कोई पेमेंट करना है, आपको इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना है, या आपको कहीं से पैसे लेने हैं, जैसे आपने अपने बैंक को कमांड कर दिया दैट एवरी ऑन द डेट ऑफ द फिफ्थ ऑफ एवरी मंथ डेट यू कैन डिपॉजिट द इंश्योरेंस प्रीमियम। किसी भी डेट को आप फिक्स कर सकते हो। यू कैन रिसीव द रेंट ऑल्सो। तो ये सारी चीज़ें, अगर मान लीजिए आप शेयर्स खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो उसके बदले में आपका जो ट्रांजेक्शन है डीमेट अकाउंट में वो कर दे रहा। अगर इनकम टैक्स कंसल्टेंसी की आपकी फ़ीस देनी है, आप वो दे दीजिए। यानी ऐसे जो आपके एजेंट के तौर पे बैंक काम करेगा। और जनरल यूटिलिटी क्या होता है कि बैंक में हमें अकाउंट होने के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जैसे कि लॉकर की फैसिलिटी मिल जाना। आप लोगों ने देखा होगा बहुत से लोग हैं जिनके बिजनेस पर्सन हो या इंडिविजुअल्स हो, वो लॉकर फैसिलिटी ले सकते हैं। अब लॉकर किस में आया, कि एक्सेप्टिंग डिपॉजिट में आया, नहीं। एडवांसिंग लोन में आया, नहीं। सेकेंडरी फंक्शन के ओवरड्राफ्ट डिस्काउंटिंग एजेंसी, नहीं। जनरल यूटिलिटी एक सेटिस्फेक्शन की, चलो हाँ इस बैंक में रखते हैं, हम अपना लॉकर खुलवा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चेक की फैसिलिटी देना, आपको ट्रैवलर्स चेक मिलते हैं, आपको लेटर ऑफ क्रेडिट, आप जानोगे कि जैसे फॉरेन ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसके लिए हमें लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करना होता है, तो वो बैंक इशू करेगी तभी आपका फॉरेन ट्रांजेक्शन्स एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के बदले हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। तो दैट आर द इम्पॉर्टेंट टर्म्स, और ये ध्यान रखिएगा, इसका डिटेल ज़रूर पढ़ लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है आपका, राइट। चलिए नेक्स्ट वन। अब आते हैं ये इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्या, मनी क्रिएशन, जिसको हम क्रेडिट क्रिएशन भी कहते हैं, बैंकिंग सिस्टम में हो रहा है। और ध्यान रखिएगा कि ये आपके जितने कमर्शियल बैंक्स हैं उनके थ्रू ही होता है। गाइडलाइंस आपकी आरबीआई देता है, सेंट्रल बैंक देता है हमारे यहाँ का, इंडिया का, लेकिन उसमें काम किया जाता है आपके कमर्शियल बैंक्स के द्वारा। तो कुछ इसके लिए हम रिलेटेड कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, पहले जान लेते हैं कि मनी क्रिएशन या क्रेडिट क्रिएशन में काम क्या करना होता है। फर्स्ट वन इज़ द assumption दैट द एंटायर कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम इज़ द वन यूनिट एंड टर्म्ड एज द बैंक्स। हम ये मानेंगे जितने भी कमर्शियल बैंक हैं वो बैंक्स के नाम से जाने जाएंगे और किसी नाम से नहीं जाने जाएंगे। जितने भी ऑल रिसिप्ट एंड पेमेंट्स इन द इकोनॉमी आर रूटेड थ्रू द बैंक्स, हम ये मानेंगे देयर इज़ नो कैश ट्रांजेक्शन, और कोई किसी को उधार नहीं दे रहा है, कोई कैश ट्रांजेक्शन नहीं कर रहा है, एक एक एंट्री आपके बैंक के थ्रू ही हो रही है। किसी ने कुछ चीज़ सेल की, परचेज की, आपकी एक्सचेंज हुआ, वो सब कुछ बैंक के थ्रू ही होगा, ठीक है। दूसरा इसमें आपको बताया दैट द बैंक्स रिसीव द कैश डिपॉजिट फ्रॉम द पीपल इज़ नोन एज प्राइमरी डिपॉजिट और इनिशियल डिपॉजिट्स। ये मैं आपको बता दूँ, जैसे आप फर्स्ट टाइम बैंक को कोई अमाउंट मिला, तो वो उसका अमाउंट मिला पहली बार
प्राइमरी डिपॉजिट या इनिशियल डिपॉजिट होगा, जो भी आम जनता कर सकती है, वो कोई पीपल यानी ऐसा इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, राइट। एंड सपोज करिएगा द डिपॉजिट अमाउंट क्रेडिटेड। हाँ, अब जैसे आपने पढ़ा कि कमर्शियल बैंक क्या करते हैं, एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट एंड एडवांसिंग द लोन। तो एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट आपका कहाँ हो गया, यहाँ हो गया था इनिशियल डिपॉजिट में, क्योंकि आप एक्सेप्ट कर रहे थे, रिसीव कर रहे थे। अब यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप अपने बोरोअर्स को लोन के तौर पर वही पैसा दे रहे हो, समझ रहे हो। आप पैसा दे रहे हो तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि आप उनको कैश इन हैंड दे रहे हो, नो, यू आर sanctioning loan, you are lending the money in the form of loan to the borrowers, and then you will transfer that amount to their respective bank account। जो भी उनका बैंक अकाउंट है, जो खाता है, जहाँ आप ऑब्वियसली आपसे लोन रहे हैं तो आपके बैंक में ही खाता होगा, उस खाते में उनका अमाउंट को डाल देना, यानी अमाउंट को क्या कर देते हैं, क्रेडिट। आप देखते हो ना, कई बार आपके पास मैसेज भी आते होंगे दैट द सर्टेन अमाउंट, लाइक सपोज करिए 5000 रुपीज़ हैज़ बीन क्रेडिटेड इन योर अकाउंट। इसका मतलब वो आपके में क्रेडिट कर दिए गए हैं, आपके अकाउंट में वो एंट्री दे दी गई है, आपके अमाउंट में वो पैसा आ गया है, तो वो क्या कहलाता है, सेकेंडरी डिपॉजिट, राइट। तो ध्यान रखिएगा, जितना भी एडवांसिंग लोन्स हैं जो आपके बैंक दे रहे हैं, वो सेकेंडरी डिपॉजिट कहलाए जा सकते हैं। जो भी आप पैसा ले रहे बैंक में जमा कर रहे हो, दैट विल बी प्राइमरी डिपॉजिट्स, राइट। उसके बाद टर्म आता है आपका कैश रिजर्व रेशियो, जो क्या बताता है, अ परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट्स। अब ध्यान रखिएगा, प्राइमरी और सेकेंडरी दो डिपॉजिट्स आए थे। मैं अगर आपका यहाँ से फिर बताती हूँ आपको, अगर हम जाएँ इस पर, तो आप यहाँ देखते होंगे हमारे पास दो चीज़ें आई थी, एक प्राइमरी डिपॉजिट और दूसरा आपका सेकेंडरी। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूँ तो मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा, डिमांड डिपॉजिट्स निकल आते हैं, यानी जो कि हमारे कोई भी इंडिविजुअल कभी भी डिमांड कर सकता है। अब होता क्या है कि हम ये मान के चलते हैं कि जितने भी लोग हमारे यहाँ पैसा जमा करके गए, वो एक दिन में तो नहीं आ जाएंगे लेने। प्राइमरी डिपॉजिट को एज अ लोन हम क्यों दे पाते हैं, सिर्फ इसी बेसिस पर जहाँ हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये लोग एक दिन में तो सारे के सारे लोग पैसा लेने हमारे पास नहीं आने वाले। उस केस में हमने क्या किया कि इसी पैसे को, इसी अमाउंट को एज अ डिपॉजिट रखा और आगे बोरिंग्स के तौर पे दे दिया। अब हमारे को एक बैंक्स के सेंट्रल बैंक का इंस्ट्रक्शन है दैट यू हैव टू कीप सर्टेन अमाउंट ऑफ डिपॉजिट एज रिजर्व्स विद योरसेल्फ। मतलब समझ में आया, अ परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट, जो भी आपके पास डिपॉजिट आ रहा है पैसा, उसका कुछ हिस्सा आपको एज अ रिजर्व्स रखना पड़ेगा, और उस रिजर्व को कहा जाएगा कैश रिजर्व रेशियो, CRR कॉमनली हम जिसको बोलते हैं। अब हर बैंक, और ये बैंक अपने पास ही रखेगा, राइट। अब क्या होता है कि अपार्ट फ्रॉम, इसमें एक चीज़ और आती है, अपार्ट फ्रॉम द CRR बैंक्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू कीप सम रिजर्व्स इन द लिक्विड फॉर्म इन द शॉर्ट टर्म। लिक्विड फॉर्म में कैसे, मतलब जैसे गोल्ड में या ऐसे पेपर्स में, बॉन्ड्स में पैसा डिपॉजिट करना जिसको हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। आप लोगों ने शायद अकाउंटेंसी में या बिजनेस में पढ़ा होगा कि हमारे पास लिक्विड एसेट्स या लिक्विड फॉर्म वो होती है दैट द व्हेन यू हैव एसेट दैट यू कैन इजीली कन्वर्ट इनटू कैश। जिस चीज़ को आसानी से कैश में कन्वर्ट किया जा सके इन हैंड, तो वो क्या कहलाता है आपका लिक्विड फॉर्म। तो हम कुछ पैसे को लिक्विड फॉर्म में रखते हैं, वो क्या कहलाता है आपका SLR। क्या कहलाता है आपका SLR, राइट। और उसके बाद नेक्स्ट टर्म आता है आपका, दैट वन इज़ द LRR। LRR क्या है, बेसिकली इट इज़ लीगली कंपल्सरी फॉर द बैंक टू कीप अ सर्टेन मिनिमम फ्रैक्शन ऑफ देयर डिपॉजिट। मिनिमम फ्रैक्शन ऑफ देयर डिपॉजिट, यानी लोगों ने जो पैसा डिपॉजिट किया था उसका कुछ हिस्सा हम रिजर्व्स के तौर पे रख दें, और ये लीगली आपको मानना ही पड़ेगा, और ये RBI ही फिक्स करती है कि कितना होगा। ये टाइम वेरी करता है, हमेशा फिक्स नहीं रहता है, ये टाइम वेरी करता रहता है। उतना अमाउंट आपको एज अ रिजर्व्स अपने पास रखना होता है, उसको आप एज अ लोन नहीं दे सकते, राइट। कई जगह आपको ये सुनने को मिलेगा, आप अगर बुक्स में भी जाओगे तो कई बुक्स कंफ्यूज कर देती हैं। बच्चे आके पूछते हैं कि मैम CRR LRR, कहीं पे LRR दिया है, कहीं पे CRR दिया है, वो क्या मतलब है।
ध्यान रखिएगा, कॉमन, अगर ब्रॉड मीनिंग पे चाहोगे तो दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। बस अगर आपको समराइज फॉर्म में समझना है तो ये है आपके पास फॉर्मूला कि CRR प्लस SLR इज इक्वल टू LRR, राइट। जो कैश फॉर्म में रख दिया जाए वो कैश रिजर्व रेशियो, जो लिक्विड एसेट्स में रख दिया जाए जैसे गोल्ड बॉन्ड्स में वो स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, इन दोनों को मिलाकर लीगली जो गवर्नमेंट ने RBI ने बाउंड कर दिया, सेंट्रल बैंक ने बाउंड कर दिया, कितना पैसा आप एज अ लोन नहीं दे सकते, आपको रखना ही रखना पड़ेगा रिजर्व में, तो वो क्या कहलाएगा आपका LRR। एम आई क्लियर? चलिए लेट्स प्रोसीड विद द नेक्स्ट स्लाइड। अभी देखिएगा उसी अमाउंट को ये मनी मल्टीप्लायर या क्रेडिट क्रिएशन की प्रोसेस होती कैसे है वो हम इससे समझते हैं। आप थ्योरी में ऊपर जाओगे तो पढ़ लोगे, वरना अदरवाइज आप सिर्फ इतना, अगर ये टेबल भी कवर करते हो इस टेबल से भी आपको समझ आएगा। ये क्या है ये समझते हैं। सी, अभी हम ये समझते हैं कि एक इंडिविजुअल गया, क्योंकि मैंने आपको बताया होता क्या है कि हम ये मानते हैं सारे ट्रांजेक्शन्स कहाँ से हो रहे हैं, बैंक्स के थ्रू हो रहे हैं, सारे अमाउंट डिपॉजिट कहाँ हो रहे हैं, बैंक्स में ही हो रहे हैं, कोई कैश ट्रांजेक्शन नहीं होगा। अब सपोज करिए बैंक के पास 1000 रुपीज़ इनिशियल डिपॉजिट आया, राइट। अब हर एक बैंक को पता है कि जो भी इंडिविजुअल आ रहा है अमाउंट देने, वो आज के आज वापस नहीं लेगा, या अगर उसको ज़रूरत भी होगी तो पूरे के पैसे की ज़रूरत नहीं होगी, उसमें से हम कुछ पैसे को, कुछ अमाउंट को एज अ लोन आगे ग्रांट कर सकते हैं। तो क्या हुआ, 1000 रुपीज़ द बैंक गेट एज अ डिपॉजिट, दे एक्सेप्टेड द डिपॉजिट। उन्होंने क्या हुआ कि ये देखा LRR या कैश रिजर्व हम बात करें जो कि 20% फिक्स था, तो 1000 का 20% कितना होता है आपका 200, कितना होता है 200। तो इन्होंने उसको क्या किया, उस अमाउंट को तो वो नहीं देंगे बैंक को, आगे जो कस्टमर्स हम जिनको एज अ लोन या बोरिंग्स दे रहे हैं अमाउंट, हम क्या करेंगे 1000 में से 200 रुपीज़, 1000 में से 200 रुपीज़ हमने कैश में रिजर्व के तौर पे रख लिए। मतलब इसको तो हम हाथ भी नहीं लगाएंगे, हम ये मानेंगे कि वो कोई भी इंडिविजुअल आ सकता है और इस अमाउंट को लेके चला जाएगा, यानी जिसने डिपॉजिट किया था वो, और बाकी का 800 हम एज अ लोन किसी और को दे देंगे, राइट। अब क्या हुआ, जिसको हमने 800 रुपीज़ एज अ लोन दिया, वो क्या किया, अब लोन दिया तो उसका भी अकाउंट खुलेगा, अकाउंट खुलेगा तो इसका मतलब वो भी हमारे पास डिपॉजिट के तौर पे आ गया वापस, पैसा कि नहीं, आप बताओ। इनिशियल डिपॉजिट, प्राइमरी डिपॉजिट तो मैंने भी आपको बताया था, कोई भी इंडिविजुअल जाता है जो कैश जमा करता है, राइट, तो वो क्या कहलाया इनिशियल डिपॉजिट। लेकिन अब उसमें से कुछ हिस्सा जो हमने एज अ लोन दे दिया 800 रुपीज़, उस 800 रुपीज़ के केस में हमने उस इंडिविजुअल का भी अकाउंट खोला, उसको कैश तो दिया नहीं, और उस अकाउंट में पैसा आने की वजह से वो क्या हो गया सेकेंडरी डिपॉजिट, अल्टीमेटली वो पैसा घूम फिर के फिर से बैंक के पास आ गया, राइट। तो वही चीज़ दिया गया है राउंड 1 में, ये जो 800 है वो यहीं से आया। अब 800 का 20% कितना हुआ 160, 160 हमने रिजर्व के तौर पे रखा, और बाकी का 640 जो आपको यहाँ दिख रहा होगा 640 हमने एज अ लोन दे दिया, राइट। जब एज अ लोन दे दिया तो उसका फिर से अकाउंट खोला, वो पैसा फिर से हमारे पास एज अ डिपॉजिट आ गया। फिर हमने इसका 20% 128 क्या किया रिजर्व के तौर पे अपने पास रखा कि इसका हम लोन नहीं देंगे, तो बाकी जो हमारे पास क्या बचा 512 हमने उसको एज अ लोन दे दिया। और यही प्रोसेस हम करते 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 चले गए, और कई बार आप करते रहोगे। कब तक करोगे आप ये प्रोसेस, तब तक करोगे जब तक आप ये नहीं देखोगे कि आपने जो इनिशियल डिपॉजिट किया था उतना ही अमाउंट आपके पास एज अ रिजर्व्स बचा हो, राइट। जैसे मैं आगे ऊपर आप इंस्ट्रक्शंस अगर पढ़ते हो तो आपको ये चीज़ दिखेगी, इसमें एक लाइन लिखी हुई है, डिपॉजिट क्रिएशन कम्स टू एंड, ये प्रोसेस कब तक चलती रहेगी, अंतिम पड़ाव पर तब आएगी when total cash reserves becomes equals to the initial deposit। total cash reserves कौन सी है, ये वाले कैश रिजर्व्स का टोटल ये है, ये किसके बराबर ना हो जाए, इनिशियल डिपॉजिट के बराबर हो गया, देख रहे हो आप, राइट, हो गया।
तो यही चीज़ आपकी ये जो डिपॉजिट क्रिएशन की, यानी ये जो क्रेडिट क्रिएशन की प्रोसेस या मनी क्रिएशन की प्रोसेस जिसको हमने बोला, वो कब तक चलती रहेगी, जब तक इनिशियल डिपॉजिट के बराबर ही हमारा कैश रिजर्व्स ना हो जाए, राइट। तो ऐसा करने का बेसिक पर्पस क्या है, वो हमारे पास ये निकल के आता है। एज सीन इन द टेबल, बैंक्स आर एबल टू क्रिएट द डिपॉजिट ऑफ 5000। आप इन सब का अगर टोटल करोगे तो वो निकल कर आएगा आपके पास 5000 विद द इनिशियल डिपॉजिट टू ऑफ जस्ट ₹1000। इस 5000 में 1000 हमारा डिपॉजिटेड है ऑलरेडी। इट मीन द टोटल डिपॉजिट बिकम 5 times द इनिशियल डिपॉजिट। इनिशियल डिपॉजिट कितना था 1000, 5000 का 5 times होता है, तो 5 times इज द नथिंग बट द वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर। हमारे पास टर्म निकल के आया मनी मल्टीप्लायर। एम आई क्लियर? अगर जिसको भी ये प्रोसेस समझ नहीं आई, एक बार फिर से सुन लीजिएगा आप इसको वीडियो रिप्ले करके, और अगर जिसको समझ में आ गई बहुत अच्छी बात है, और फिर भी समझ नहीं आई तो मैं आपके लिए एक चीज़ बताती हूँ। ये मनी मल्टीप्लायर और डिपॉजिट मल्टीप्लायर जो कि सिंबॉलिकली के से डिनोट होता है, इसका फॉर्मूला जनरेट किया गया है। इस फॉर्मूले से आप इजी जो ये प्रोसेस करके नहीं शो करने चाहते और जनरली जान जाते हैं कि मैम हमें तो ये पता है कि आपके पास अगर कोई भी अमाउंट एज अ डिपॉजिट हम करते हैं तो उससे कितना अमाउंट और फर्दर एज अ क्रेडिट क्रिएट किया जा सकता है। तो उसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला बनाया गया है, दैट इज़ मनी मल्टीप्लायर, जिसको डिपॉजिट मल्टीप्लायर भी बोल सकते हैं। क्या? द फॉर्मूला इज़ 1/LRR। अगर आप एग्ज़ाम में इसकी जगह 1/CRR भी लिखे जाते हो तो भी गलत नहीं होगा, सही माना जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कई बुक्स CRR LRR में बुक्स में अलग अलग बुक्स में अलग अलग कंटेंट दिया गया है। एक कॉमन टर्म में आप उसको LRR लेते हो, अगर CRR भी लिखे आते हो तो गलत नहीं होगा। क्या है? मल्टीप्लायर प्रोसेस जो हमने भी पीछे पूरी पढ़ी, वही आपकी मनी मल्टीप्लायर या डिपॉजिट मल्टीप्लायर की पूरी प्रोसेस है। क्या है? इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन ऑफ क्रेडिट। हम क्या क्रिएट कर रहे हैं? क्रेडिट क्रिएट कर रहे हैं। कौन कर रहा है? कमर्शियल बैंक्स। किसके द्वारा? बाई कमर्शियल बैंक्स विद द हेल्प ऑफ इनिशियल डिपॉजिट। जो हमने पैसा उनके पास डिपॉजिट किया था, राइट, मेड बाई द पब्लिक। कौन उसे डिपॉजिट करता है? पब्लिक करती है। एंड लीगल रिजर्व रेशियो, क्योंकि फॉर्मूला क्या यूज़ किया जा रहा है? लीगल रिजर्व रेशियो, यानी उस डिपॉजिट को जो कि पब्लिक आम जनता ने बैंक में जमा किया, उसमें से कुछ हिस्सा जो कि हमने लीगल रिजर्व रेशियो के तौर पे निकाल के रखा था, उससे हम कितना अमाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट जैसा बोला जाता है ना, आप लोगों ने कई बार सुना कि ये भी इंसान की कला है, 1 रुपये से 1 लाख कैसे बनाया जाता है, तो ये वही है कि 1000 से 5000 कैसे बनाया, क्योंकि कुछ सर्टेन अमाउंट हमने एज अ डिपॉजिट रखा हुआ था। जैसा भी पिछले एग्जाम्पल आपने पढ़ा ना, LRR 20% था, तो ये वही है। सी LRR जो आपका 20% था, तो मनी मल्टीप्लाई का फॉर्मूला रखा मैंने 1/LRR, तो 1/LRR क्या था होगा? 0.2। अब बोलो मैम 0.2 कैसे आ गया? मैं आपको बता देती हूँ। 1/20 डिवाइडेड बाई 100। 20% को परसेंटाइल हटाते हो तो 100 आ जाता है, फिर ये ऊपर गया तो ये क्या बनता है? 100 डिवाइडेड बाई 20। तो 100 डिवाइडेड बाई 20 इज ऑल्सो नोन एज 0.2, राइट। तो इसीलिए बना 1 डिवाइडेड बाई 0.2। या अगर आप नॉर्मली यहाँ से भी इसको अगर आप डिवाइड कर देते तो आपको दिखता 100 को 20 से डिवाइड किया तो कितने टाइम्स गया? 5 टाइम्स। तो वही आपके पास यहाँ से निकल के आया है, राइट। चलिए, इसके साथ मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ। कई बार क्या होता है, ये यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्लेस हो गया, मैं इसको रेक्टिफाई कर देती हूँ। 1/CRR इंटू इनिशियल डिपॉजिट्स, ये है बेसिक फॉर्मूला, राइट। क्या है? टोटल डिपॉजिट क्रिएटेड, कि हमने जो अमाउंट डिपॉजिट किया था, आप देख रहे हो जैसे इस वाली स्लाइड में था कि हमने अमाउंट डिपॉजिट कितना किया था? 1000। उसमें से कुछ 20% हमने रिजर्व रखा। तो मुझे अगर ये जानना हो कि टोटल अमाउंट उससे कितना हम डिपॉजिट क्रिएट कर सकते हैं, बोथ इन द प्राइमरी एंड secondary deposit, as a primary deposit and secondary deposit. See, 1000 that you have
deposited in your bank was the primary deposit, and furthermore you just created the money as a secondary deposit, जो फर्दर आपने लोन के तौर पे दिया, जो दिख रहा है ना ये। तो प्राइमरी क्या था 1000, सेकेंडरी क्या है 4000, दोनों को ऐड करा तो ये क्या निकल गया यार टोटल डिपॉजिट्स। तो अगर आपके पास हर केस में ऐसी कैलकुलेशन ना हो तो उस केस में हम इस फॉर्मूले को लगा देते हैं। कौन से वाले फॉर्मूले को, जो आपको यहाँ पे मेंशन किया गया है, एक बार बता देती हूँ, दैट 1/CRR into initial deposits, right, this one, राइट। टोटल डिपॉजिट क्रिएटेड यानी आप उस इनिशियल डिपॉजिट से कितना और डिपॉजिट क्रिएट कर सकते हो। तो मेरा एक जनरल सवाल इसी एग्जाम्पल के साथ कि या एक कंक्लूजन निकल के आता है कि 1000 रुपीज़ इफ यू हैव डिपॉजिटेड देन इट मीन्स यू कैन क्रिएट इट टू द एक्सटेंट ऑफ 5000, यानी 5 times. It means you are multiplying the money. 1000 is multiplying with 5 times. That's why this concept is known as a money multiplier, right? तो ये हमें क्या होता है, it signifies that for every unit of money kept as reserves, banks are able to create the 5 units of money. The value of multiplier is determined by the LRR. Higher the value of LRR, lower the value of money multiplier. ये एक कंक्लूजन निकल के आता है क्या, जितना ज़्यादा LRR होगा उतना ही कम मनी मल्टीप्लायर होगा। मतलब सिंपल छोटा सा एग्जांपल, जैसे 100 रुपीज़ हैं आपके पास, 100 रुपीज़ में से अगर आपने 10 रुपीज़ रिजर्व के तौर पे रख लिए, बचा लिए, खर्च नहीं किए, बाकी के 90 आपने खर्च कर दिए, राइट। और दूसरा ऑप्शन कि 100 रुपीज़ थे, 20 आपने बचा लिए और 80 खर्च कर दिए। तो आप ये बताइए, जो आपने खर्च कर दिया, जो 90 रुपीज़ खर्च कर दिया था और सिर्फ 10 रुपीज़ अब फर्दर कहीं इन्वेस्ट करना होगा, तो आप जैसे मैं इसी चीज़ को बताती हूँ कि फर्दर अगर आपके पास, मैं यहाँ लिख कर बताती हूँ, ऐसे नहीं आएगा आपको क्लियर। मिस्टर ए हैं जिनके पास 100 रुपीज़ हैं, राइट। 100 में से उन्होंने 90 रुपीज़ खर्च कर दिए और 10 रुपीज़ उन्होंने सेव कर लिए। क्या करे, सेव कर लिए, यानी रिजर्व के तौर पे रख लिए। और वहीं ये कौन थे, मिस्टर, ये थे आपके मिस्टर ए, राइट। और वहीं पे हैं एक मिस्टर बी जिनको 100 रुपीज़ मिले, राइट। उस 100 में से उन्होंने 80 रुपीज़ को क्या कर दिया, खर्च कर दिया, और बाकी के 20 रुपीज़ को इन्होंने क्या कर दिया, सेव कर लिया, राइट। अब क्या हुआ, दोनों के पास ऑप्शन आए कहीं इन्वेस्टमेंट के लिए। मिस्टर ए कितना आपका इन्वेस्ट कर पाएंगे, मिस्टर ए इन्वेस्ट कर पाएंगे ओनली 10 रुपीज़, और मिस्टर बी कितना कर लेंगे 20। तो ये बताओ फर्दर आगे किसी इन दोनों में से किसके ज़्यादा चांसेस हैं कि ज़्यादा पैसा कमा पाएंगे, जिसने रिजर्व ज़्यादा रखा होगा, राइट। तो ये चीज़ वही बताइए, द हायर द वैल्यू ऑफ LRR, लोअर द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। यानी सिंपल, क्योंकि ये टर्म्स आपके रेशियो में आ गया है, जिस विच इज़ ऑल्सो नोन एज मनी मल्टीप्लायर, जो कि हम बोलते हैं इट इज़ अ रेसिप्रोकल ऑफ 1RR। और जब किसी भी चीज़ का आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा था क्लास 10th में कि रेसिप्रोकल जहाँ आ जाता है, इसका मतलब दोनों में रिलेशन उल्टा हो जाता है। इसका मतलब दे विल मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन। LRR ज़्यादा तो मनी मल्टीप्लायर कम, आप उतना ही कम मनी क्रिएट कर पाओगे। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं, सी दिस वन। अगर हम बात करें calculate the total deposit created if the initial deposit is rupees 1000 crore and LRR is 12.5%। अगर आपने कहीं पर 1000 रुपीज़ का 1000 करोड़ का क्या किया, डिपॉजिट किया, इनिशियल डिपॉजिट, LRR है आपका 12.5%। अब ध्यान रखना पिछले वाले से कम है, यहीं से आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। अब क्या हुआ कि मनी मल्टीप्लायर कितना हो रहा है 1/LRR, तो इस 12.5% को हमने पॉइंट्स में डेसिमल में कन्वर्ट किया तो 0.125 आता है। यानी ये क्या बता रहा है, दैट यू कैन कन्वर्ट योर इनिशियल डिपॉजिट टू द 8 times, जो यही बताया। देखो टोटल डिपॉजिट इज इक्वल टू
initial deposit into money multiplier. Initial deposit is 1000 multiplied by 8. 8 is the money multiplier, the value of the money multiplier. It means with the help of this 1000 crore you can create the money 8000, जिसमें होगा क्या, अब मैं आपको बता दूं, इस 8000 में 7000 तो आप क्या दे रहे होगे एज अ लोन, सेकेंडरी डिपॉजिट, और ये 1000 जो आपने डिपॉजिट किया था, दिस विल अल्टीमेटली बिकम इक्वल टू द कैश रिजर्व्स. ये किसके बराबर बन के आ जाएगा, कैश रिजर्व्स के बराबर, जो कि आपकी इनिशियल डिपॉजिट्स भी थे. एंड द टोटल डिपॉजिट यू वुड गेट इन योर हैंड्स वुड बी 8000 करोड़. सी दोनों में वैल्यू सेम है, जो अंतर है इस वाले एग्जाम्पल में और पिछले वाले एग्जाम्पल में, क्या दोनों में अंतर है, सिर्फ आपके इस LRR का 20% था, तो मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी 5%, और यही चीज़ जब आपके पास 12.5% हो गई तो मल्टीप्लाई कितना 8 टाइम्स. तो यहीं पे आपका कंक्लूजन निकल के आता है, मैं यहीं लिख देती हूँ. LRR जब आपका 20% था, राइट, तो मनी मल्टीप्लाई की वैल्यू कितनी 5. तो हमारे पास जो इससे पहले स्टेटमेंट आया था, क्या, हायर द वैल्यू ऑफ LRR, हायर द वैल्यू ऑफ LRR, lower is the value of money multiplier, and lower is the value of LRR, higher is the multiplier. इन्वर्सली रिलेट करते हैं, इन्वर्स रिलेशन. तो ये कंक्लूजन ये भी आता है, देयर इज द इन्वर्स रिलेशन बिटवीन द मनी मल्टीप्लायर एंड द LRR. इन्वर्स रिलेशन है. क्लियर? फॉर फर्दर डेप्थ के लिए आप इसको एक बार बुक से ज़रूर 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 रीड करिएगा. 4 मार्क्स का क्वेश्चन कई बार आपके पास न्यूमेरिकल के बेसिस पे आ जाता है कि एक्सप्लेन मनी मल्टीप्लाई विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल एग्जांपल एंड एलैबोरेट करके मैंने असाइनमेंट में भी क्वेश्चन दिया हुआ है. आप एक बार ज़रूर करिएगा, असाइनमेंट का फीडबैक ज़रूर दीजिएगा. मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर. ओके, टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम, बाय बाय.